Hello, hi, Namaskar, Jai Jagannath. Welcome back to my home, guys. Stay safe, stay home, and stay healthy. With a few days, I am coming with a new video with communication and its importance MCQs related to your EMRS, KVS, NET, CTET exam. Please to watch. First of all, I would like to say all of you please to extensively read any textbook related to your syllabus like NCERT or CBSE on revised 2021 syllabus with your graduation level and intermediate level syllabus content and theoretical perception. Now let us start this video. Please to subscribe my channel, share and like this video. For more information, do click on the bell icon so you will get notification on the new videos. So let us start this video. First of all, communication, what is it? Its introduction, meaning and definition. What do you mean by communication? Without communication, communication के बगैर कोई हमारे कम्युनिकेशन के बगैर हम ह्यूमन सोसाइटी कैन नॉट बी एग्जिस्ट, हमारी ह्यूमन सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी. इन दिस यूनिटी वी डिस्कस अबाउट द वर्ड कम्युनिकेशन. लाइक कम्युनिकेशन कहाँ से है. लाइक द वर्ड कम्युनिकेट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड कॉमन, like to share, exchange, send, along, transmit, like talk, gesture, write, put in use or relate. जैसे कि हमारी communicate जो word है, this word derived from the word common. This meaning क्या है उसकी? To share, to exchange, to send, along, transmit, talk, gesture, write, put in a user related word. Then the study of communication is different from the study of subjects such as thought or literature or life. When someone says this is a communication problem, what does it that means? Like to understand the meaning and concept of communication, understand the process of communication. Harsh, the major thing is that in a communication process we need to share our ideas, our feelings. हमारा जो आइडियाज है, हमारे अंदर जो फीलिंग्स है, उसको शेयर करने को हम कम्युनिकेशन कहते हैं. जैसे कि वो हो सकती है वर्ड में, वो हो सकती है कोई फिजिकल गेस्चर या कोई सिंबलिक टर्म में. जैसे कि जो फिजिकल डिजेबल हो या डिफरेंटली एबल पीपल हो, उन्होंने हमारे जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस होते हैं, जो कि बात नहीं कर सकते, वो सिंबलिकली शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स आइडियाज़ को. जैसे कि वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. वर्बल कम्युनिकेशन क्या, हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, रिटिन कम्युनिकेशन होते हैं, वो सब हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. वो चीज़ हमने टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो मीनिंग क्या है जो कम्युनिकेशन है? कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप एंड मेक्स ऑर्गेनाइजिंग पॉसिबल. जैसे कि एवरी मैसेज हैज ए पर्पज और ऑब्जेक्टिव. कोई भी मैसेज हम देना चाहें तो किसको, एक सेंडर होते हैं, एक रिसीवर होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे डीपली प्रोसेस होते हैं. उसके हिसाब से जो मैसेज है, जिसके पास वो मैसेज जाना है, उसके हिसाब से वो ऑर्गेनाइज हो. देयर इज ए पर्पज and objective. The sender intends, whether consciously or unconsciously, to accomplish something by communicating. Okay, then the thing is that communication can be defined as the process through which two or more person come to exchange ideas and understanding among them. एक ही लोग कोई कम्युनिकेशन से वो चीज़ नहीं कर सकते. देयर इज नीड टू बी मोर देन वन पर्सन टू कम्युनिकेट ए मैसेज और आइडियाज. सो देयर इज नीड ऑफ मोर देन टू पर्सन और मोर देन वन पर्सन फॉर ए इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अगर कोई कम्युनिकेशन हम कर रही है तो इसके लिए हमको एक से ज़्यादा लोग चाहिए. किसके साथ हम कम्युनिकेट कर रही है? ठीक है. देन एलिमेंट्स क्या है कम्युनिकेशन की? An information like a source. This is need to be presumably a person who creates a message. Then the message which is both sent by the information source and received by the destination. कोई एक मैसेज हो, हम किस चीज़ को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कौन सी क्या वो मैसेज है जिसको हम देना चाहें, वो मैसेज इज इम्पोर्टेंट. जैसे कि कोई कोई भी कुछ भी मैसेज हो, कोई पढ़ा रही है, कोई कुछ बात कर रही है, कोई स्टोरी टेलर है, कुछ भी हो, देयर शुड बी मैसेज विच इज हैव सम ऑब्जेक्टिव और विच इज हैव सम मीनिंग. उसका कोई मीनिंग होना चाहिए. जैसे कि कोई, जैसे भी कोई वर्ड्स हो, वो वर्ड्स का कुछ मीनिंग हो. इसके बगैर, कोई मीनिंग के बगैर उसका कोई मतलब ही नहीं. जैसे कि जो मैसेज हो उसका ऑब्जेक्टिव एंड प्रपोज सही होना चाहिए. देन एक ट्रांसमीटर हो, जैसे कि क्या चीज़ उसको ट्रांसमिट कर रही है, कोई चैनल हो उसके साथ, इंटरनेट हो, कोई वर्ड्स हो, कोई लेटर हो,
उसी के हिसाब से एक ट्रांसमीटर, वो इसके चैनल होते हैं। कोई बात कर, कोई लैंग्वेज हो, कोई वर्ड्स हो, उसको हम एक ट्रांसमीटर कहते हैं। देन द सिग्नल, जैसे कि कौन सिग्नल में वो वर्ड को कम्युनिकेट करना चाह रहे, एक रिसीवर तो जरूर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वन सेंडर एंड सेकेंड वन इज द रिसीवर, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन ए कम्युनिकेशन प्रोसेस। ए डेस्टिनेशन, किसको हम, उसका एक प्रपोज जो ऑब्जेक्टिव हो उसके हिसाब से हम डेस्टिनेशन तैयार करते हैं, किसको हम वो चीज़ भेज रहे हैं, वो डेस्टिनेशन कहाँ पर वो मैसेज आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ए डेस्टिनेशन। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ ए communication process. Then types of communication, what are the types of communication? There are so many, like written communication, verbal communication. The most important two types of communication are non-verbal communication and verbal communication. After that there is upward communication, downward communication, and many more things like that. जो वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल मैसेज इंक्लूड लाइक इमेजेस, एक्शंस एंड बिहेवियर्स यूज टू कम्युनिकेट, लाइक इमेजेस हो कोई, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स हो, फिल्म्स हो, सिग्नल्स हो, चार्ट, टेबल्स, ग्राफ्स हो, वीडियो हो, दिस टाइप थ्रू वी आर क्रिएटिंग मैसेजेस टू द ऑडियंस। देन नॉन वर्बल बिहेवियर्स लाइक बॉडी लैंग्वेज, कोई गेस्चर हो, कोई एक्टिव लिसनिंग हो, कोई सुन रहा है हमारे बात को, उसका पोर्शन कैसे हो, उसका अपीयरेंस कैसे हो, वो सारी चीज़ हमारे नॉन वर्बल मैसेज में आते हैं। देन उसके बाद हमारे वी कम्युनिकेट मोस्ट ऑफ आवर आइडियाज टू अदर्स थ्रू वर्बल मैसेज, एक स्पोकन और रिटन मैसेजेस, कोई मैसेज कर रहा है रिटन लिख कर, या कोई स्पोकन बात कर रहे हैं उसके साथ हमको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द कम्युनिकेशन डन विदाउट स्पीकिंग, कुछ ही बात मत कर कर, कुछ ही ना बोलकर, हम कुछ ही रिटन ना लिख कर जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जो कि कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, वो भी एक टाइप का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है। देन बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, देयर आर सो मेनी बैरियर्स, लाइक कोई अच्छी तरीके से कोई कोडिंग ना हो, डिकोडिंग कैसे होते हैं, देन कम्युनिकेशन का कोई चैनल सही तरीका से ना हो, देन मेन प्रॉब्लम्स लाइक दैट, एक ऑर्गेनाइजिंग ना हो वो जो वर्ड की कंजक्शन का, दैट कैन बी इफेक्टिव बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कोई नॉइज हो, देन उसके बाद हमारा जो एमसीक्यूज रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन है, क्या क्या रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर है। अगर आपको कोई कम्युनिकेशन का अच्छा बुक खरीदना है एक मार्केट पे, तो एक ही जो कम्युनिकेट रिलेटिंग टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, उसका बैरियर्स क्या है, वो सारी चीज़ें कंसेप्चुअल एनालिसिस कर कर आप खरीद सकते हो। जैसे कि आप सिर्फ एक कंटेंट देख लो, कोई कम्युनिकेशन बुक अगर आप खरीद रहे हो एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन का बुक, देन यू माइट बी रिफर कोई कंटेंट हो, अगर जैसे कि उसका कंटेंट में क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, type of communication, effective communication, its barrier, communication related to teaching learning process, वो सारी चीज़ अगर उसका कंटेंट में है, then you can follow or buy this book. Then the MCQs related to communication, what is the means communication without words, object communication, written communication, oral communication or non-verbal communication। विदाउट वर्ड्स अगर हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट ऑफ अस यूज डैश एंड डैश इन एडिशन टू वर्ड्स व्हेन वी स्पीक, क्या क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं जब भी वी स्पीक, वर्ड्स एंड गेस्चर, गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जैसे कि मोस्ट ऑफ अस यूज गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज इन एडिशन टू words when we speak. Okay, then third one is that what type of reading is ideal and helps comprehension. The, option number A is extensive, B loud, C intensive, D silent. What type of reading is ideal and helps comprehension, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, साइलेंट। ओके, then option question number 4, communication that takes place between the members of an organization within itself, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वो कम्युनिकेशन हो रहे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल, फॉर्मल या इंटरनल, जो कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ही हो रहा है वो कम्युनिकेशन, तो हमको
इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होते हैं उसके अंदर, एक स्कूल के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है टीचर्स के भीतर, एक स्टूडेंट के भीतर, उसका इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं, भीतर ही वो जो कम्युनिकेशन हो रही है। इन क्वेश्चन नंबर 5, ओरल कम्युनिकेशन इंश्योर डैश एंड डैश, किस चीज को ओरल कम्युनिकेशन इंश्योर करे? फ्लुएंसी एंड स्पीड, adequate attention, immediate response, speedy interaction, immediate response और speed and interaction। यहाँ पर oral communication किस चीज को इंश्योर कर रहा है? adequate attention and immediate response, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6, as a means of communication, emails have features of the immediacy of both reading and receiving, writing or sending, calling and receiving and sending। कौन सी चीज यहाँ पर है जो कि एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ईमेल्स हैव फीचर्स ऑफ द इमीडिएसी ऑफ बोथ ऑफ दैट? क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जैसे कि रिसीविंग एंड सेंडिंग। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7, too much of dash communication in the workspace may also prove dash, it may lead to a negligence of war, जो कि एक नेगेटिव कोनोटेशन को बता रहा है यहाँ पर। टू मच ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, फॉर्मल कम्युनिकेशन, कौन सी यहाँ पर सही है जो कि वर्क स्पेस में एक नेग्लिजेंस ऑफ वर्क को समझा रही है? यहाँ पर टू मच ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो कि एक वर्क स्पेस है विच इज ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो यहाँ पर चाहिए वो है फॉर्मल एजुकेशन विच लीड टू ए पॉजिटिव वाइब। जैसे नेग्लिजेंस ऑफ वर्क को वो लीड कर रहा है, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लीड्स टू ए नेगेटिव प्रूफ जो कर बता रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का प्रोसेस को यहाँ पर कौन सी वो चीज है वो करेक्ट है? encoding receiver message response feedback the sender encoding message decoding receiver response feedback, sender response encoding message decoding receiver feedback और sender decoding message encoding receiver response और feedback। यहाँ पर कौन सी ऑप्शन आपकी सही है? जैसे कि sender response decoding, क्या चीज वो एक ही सीक्वेंस में आता है, यहाँ पर आपके ऑप्शन सही है डी, जो कि सेंडर डिकोडिंग मैसेज एनकोडिंग रिसीवर देन रेस्पॉन्स देन फीडबैक। ओके, यहाँ पर आपकी आज की एमसीक्यू और कम्युनिकेशन का डिटेल्स खत्म हो रहा है। अगर आपको उसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहिए देन यू कैन प्लीज टू राइट इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली डू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। थैंक यू guys, please do subscribe my channel, share and like this video।